Good morning, class 7. Myself Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kunti Nagar, Navadra. This is the fifth video lecture of the chapter Physical and Chemical Changes. So, in last video we have discussed about that copper sulfate solution, which is blue in color. When react with zinc, it forms zinc sulfate, and the color of the copper sulfate solution slowly change, means it fades away. This is the indication that zinc sulfate is being formed, and this I have explained you is an example of chemical changes. So, for example of chemical changes we have already discussed. After that we have seen other examples of the chemical changes. In that we have seen explosion of the crackers, the brown layer formed on the freshly cut apple or brinjal, digestion, photosynthesis, spoilage of the food, rusting of iron. These all are the example of the chemical changes. So these all things I have already explained you. I think you must not be having any difficulties or any problem in understanding the things. If still anyone have any problem, you should always call me and ask if you have any problem. So get your problem solved as soon as possible. Okay, now in today's video we are going to discuss about rusting, and at the end of the video we will discuss how to prevent rusting. What is rusting? Rusting is also a chemical change, because during which a new substance is formed. When iron utensils or burtan or iron object, that is Fe, is left exposed to the air, so oxygen is present in the air plus water, means moisture is there, so we can say moist air. When iron is exposed to moist air, it reacts to form hydrated iron oxide. The formula of hydrated iron oxide is Fe2O3.xH2O. So this is the formula of hydrated iron oxide, and this is called rust, and the process is called rusting. Means when iron is exposed to the moist air, a brown colored layer is formed on the iron, which is hydrated iron oxide and called as rust. It is called rusting. This rust falls down. Slowly it will fall down, ये गिर जाएगा, exposing the fresh layer of iron, which undergoes rusting. मतलब क्या कह रहे हैं? आयरन आर्टिकल्स है, this layer forms iron oxide. This iron oxide will fall and a fresh layer of iron will be exposed. This layer again get rusted. It will fall down, then the fresh layer will get exposed. Like this, the iron particles, means iron utensils or iron substance materials, slowly become weak, and ultimately it will break off or whatever it happens. So this is called rusting.
and here also new substance is formed due to reaction between iron, oxygen and the water. So these three are the reactant, these are the products. So rusting is the product of reaction between iron, oxygen and water. You can say rusting iron oxide means hydrated iron oxide is the product of reaction between iron and the moist air, and the process is called rusting. Next, this rusting is a slow process. हम बोले आपको it is a slow process, but this rusting become faster. ये rusting fast हो जाता है when moisture content of air increases. जब एयर में मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ जाएगा then rusting become faster. Okay, next thing, this rusting become faster when the water is salty. जब salty water होता है तो ये rusting और तेजी से होता है. इसी के कारण जो शिप होते हैं जो समुद्र में रहते हैं उनका जो लोअर पार्ट होता है वो जल्दी डैमेज हो जाता है और उसको रिप्लेस करना पड़ता है. So rusting become faster when moisture content of air increases or the water is salty. Next, prevention. Prevention of rusting. भाई रस्टिंग को प्रिवेंट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हमारा रेलवे ट्रैक जो है वो आयरन का बना होता है, रेलवे ब्रिजेस जो है वो आयरन के बने हुए होते हैं, हमारे बहुत सारे हमारे घर के बाहर का जो ग्रिल होता है वो आयरन का बना होता है, गेट आयरन का बना हुआ होता है. So different substance is there and we cannot control moisture and air. So what we can do, हम लोग क्या करेंगे कि हमारा ये सब्सटेंस जो है वो ज्यादा दिन तक चले, रस्टिंग ना हो. तो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग में दो तरीका है. पहला, बाय प्रिवेंटिंग डायरेक्ट कांटेक्ट विथ मॉइस्ट एयर. अगर हम किसी प्रकार आयरन को मॉइस्ट एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से रोक लें तो हम लोग रस्टिंग को रोक सकते हैं. उसके लिए एक तरीका है, क्या? बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल. ग्रीस और ऑयल लगा देंगे तो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, तो इसका मतलब प्रिवेंट कर लेंगे हम रस्टिंग को. बाय पेंटिंग, अगर हम उसके लेयर को, आयरन के लेयर को पेंट कर देंगे देन आयरन वोंट बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द मॉइस्ट एयर. थर्ड प्रोसेस इज galvanizing. व्हाट डू मीन बाय galvanizing? galvanizing मीन्स होता है covering the iron material with a thin layer of metals like chromium और zinc. मतलब आयरन का जो यूटेंसिल्स होते हैं उसके ऊपर एक थिन लेयर चढ़ा देंगे. किस चीज का? तो क्रोमियम या जिंक का. जैसे आप देखिए डुप्लीकेट जो ज्वेलरी होता है कहा जाता है ये गोल्ड प्लेटेड है. गोल्ड प्लेटेड चेन और गोल्ड चेन, इन दोनों में क्या अंतर है? ये गोल्ड चेन जो होता है वो बना हुआ होता है प्योर गोल्ड का या गोल्ड का बना हुआ होता है, बट गोल्ड प्लेटेड चेन जो होता है उसमें चेन बना होता है किसी चीप मटेरियल का और इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं गोल्ड का. इसके कारण क्या होगा? ये चमकेगा गोल्ड के जैसा. तो
इसको बनाने और इसको बनाने में अंतर है। ये महंगा होगा क्योंकि इसमें ज्यादा गोल्ड यूज हो रहा है, ये सस्ता होगा क्योंकि एक थिन लेयर ऑफ गोल्ड है। गोल्ड उसमें भी होता है मगर उसमें सिर्फ गोल्ड का एक लेयर होता है, अंदर से वो कुछ और मटेरियल होता है, वो गोल्ड नहीं होता है। इसको गोल्ड प्लेटेड चेन कहते हैं। तो उसी प्रकार आप देखिएगा जो आपका जो टायर का जो 4 व्हीलर का जो व्हील्स होते हैं, जो चक्का होता है वो चमकता है, बहुत तेज चमकता है। तो किसके कारण चमकता है? क्रोमियम या जिंक या निकेल का एक लेयर चढ़ा हुआ होता है। दो मेटल्स ये सब जो है, ये दोनों जो है ये कोरोजन और यू कैन से रस्टिंग रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब इनको जंग नहीं लगता है। क्रोमियम और जिंक जो है वो मजबूत नहीं है आयरन के इतना, इसलिए हम लोग क्रोमियम और जिंक का टायर नहीं बना सकते हैं। टायर तो मतलब वो जो टायर जिसमें लगता है वो तो बनाना हमको लोहा का ही है, क्योंकि लोहा जो होता है वो मजबूत होता है। अच्छा, मगर उसमें जंग लग जाएगा तो धीरे धीरे खराब हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, उसके व्हील पे एक लेयर चढ़ाते हैं क्रोमियम और जिंक का। ये जो मेटल्स होते हैं, ये जो क्रोमियम और जिंक जो हो गए, ये जो है ये नॉन रस्टिंग है, इस पे रस्ट नहीं लगता है, बट ये आयरन को प्रोटेक्ट करता है रस्टिंग से। इसमें अगर सबसे ऊपर का लेयर तो यही होगा ना, क्योंकि इसमें रस्ट लगता नहीं है तो उसके अंदर का आयरन का व्हील भी बच जाता है। सो दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन एंड दिस प्रोसेस इज डन, दिस गैल्वेनाइजेशन इज डन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट पास करके इसका गैल्वेनाइजेशन करते हैं। या दूसरा मेथड है बाय एलॉइंग। एलॉय, व्हाट इज एलॉय? When a metal is mixed with some other metal, when a metal is mixed with some other metal or non-metal, so that it forms a new substance, मीन्स क्या, आयरन को भी पिघला दिए, जैसे मान लो कि क्रोमियम हो गया, निकेल हो गया, फिर उसके बाद क्रोमियम हो गया, इन सबको किसी को भी लेके, जैसे मान लो एक बर्तन है, इसमें आयरन को पिघला लिए, आयरन को, इसमें क्रोमियम को, इसमें जिंक को, इन सबको पिघला लिए, एक इसमें और सबको जब मेल्ट होने के बाद सबको मिक्स कर दिए, मिक्स करके अच्छा से मिक्स करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिए। तो ये जो मिक्सचर बनेगा उसी को बोलते हैं एलॉय। एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मोर देन one or means more than two metals or a metal and non-metal is called alloy. जैसे एग्जांपल stainless steel, ये जो है ये एक एलॉय है, किस चीज का? आयरन का, निकेल का एंड क्रोमियम का। आयरन, निकेल और क्रोमियम का एक मिक्सचर है। जब इसको मिक्स कर देंगे तो जो बनता है उसको स्टेनलेस स्टील कहते हैं। स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है। क्यों इसको एलॉय कहते हैं? क्योंकि ये मिक्सचर है डिफरेंट मेटल्स का, और जो जिसके कारण इसमें जंग नहीं लगता, इसलिए इसको स्टेनलेस स्टील कहते हैं। चलिए, so these are the different methods by which we can prevent the rusting of iron. चलो लिख देते हैं what is rusting, फिर उसके बाद आप लोग देख लीजिए। चलिए, rusting of iron, when iron
is exposed to moist air, a brown layer is formed on the surface of iron. This brown layer is hydrated iron oxide and is known as rust. The process is called rusting. Rust falls off the surface, exposing the surface beneath. Beneath means नीचे. जब ये रस्ट गिर जाएगा तो उसके नीचे की लेयर को ये एक्सपोज कर देगा. इक्वेशन और मतलब केमिकल इक्वेशन क्या है? आयरन दैट इज Fe प्लस ऑक्सीजन दैट इज O2 प्लस वाटर that is H2O result into rust, that is hydrated iron oxide. Formula is Fe2O3.XH2O. This is rust. Normal. Rusting is a slow process. Rusting becomes faster when moisture content of air increases. ठीक है. और एक और बात, rusting is faster in salty water. salty water में रस्टिंग फास्ट हो जाता है. चलिए नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग. रस्टिंग का प्रिवेंशन किस प्रकार से करेंगे? पहला मेथड है बाय preventing the direct contact of air and moisture, which is done by. कैसे होगा ये? पहला, applying grease और oil. दूसरा मतलब B, पेंटिंग. इसको नीचे ही लिखिएगा, जगह कम था इसलिए हम ऊपर लिख दिए. और C, गैल्वेनाइजेशन.
व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? लिख दे रहे हैं, ए प्रोसेस in which a thin layer of metals like chromium or zinc is deposited on iron articles by passing electric current। सो ये 3 प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस तो एक है, बाय डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, इसके मतलब उसी में है बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल, बाय अप्लाइंग पेंटिंग मतलब पेंट अप्लाई करना, या गैल्वेनाइजेशन। एक और छोटा सा एक दूसरा इसके अलावा मतलब दूसरा पॉइंट जो है, इसको पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? हम मिटा रहे हैं, अभी पॉज कर लीजिएगा, हम सामने से आएंगे। चलिए, तो ये पहला था। अब दूसरा मेथड, बाई एलॉइंग, मीन्स बाई फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। व्हाट इज एलॉय? व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विथ सर्टेन corrosion resistant metals or non-metals, and alloy is formed which is resistant to rusting, मतलब जिसमें जंग नहीं लगेगा। एग्जाम्पल, स्टेनलेस स्टील is an alloy of iron, nickel and chromium। ठीक है? सो 2 मेथड है, बाय प्रिवेंटिंग डायरेक्ट कांटेक्ट और दूसरा है बाय एलॉइंग। इसमें 3 है, अप्लाई ग्रीस और ऑयल। ग्रीस ऑयल लगा के भी हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट को रोक सकते हैं, पेंट करके भी, और नहीं तो फिर गैल्वेनाइजेशन। ठीक है? चलिए, बाकी कल देखते हैं। एक और चीज बचा हुआ है, क्रिस्टलाइजेशन, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।